students, today I Priya Rohira is going to explain you chapter 1 Python pandas, as we have started this chapter already and we have covered few topics in which we had covered how to create series object. Now I will explain you few more topics in this, which are adding non-values in a series, specifying indexing as well as data with series, specify data types in series, and using a mathematical function expression to create data array in series. First of all, I will explain you none value. While creating series, sometimes we don't have complete data available at that time. In such case, we can fill missing data with none, that is not a number value. What does it mean? For example, आप कभी कोई डेटा एंट्री कर रहे हैं एंड यू डोंट नो द एंट्री ऑफ सम एंटाइटी. What does it mean? For example, suppose I am making the entries of students' name, but I don't know the name of any particular students. So in that place, I can write NaN, that is not a number value. So जब भी आपके पास में कोई डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप उस जगह पे टेम्पररी नन वैल्यू को ऐड कर सकते हैं एंड इन फ्यूचर यू कैन चेंज दिस वैल्यू with correct value. I hope that the meaning of none is clear to you. Now how to create it? Just have a look. See the example. So to adding a none value, we just simply write np.none. To have a look on the output, you can see that on position number 2 there is none value. That means I don't know the value of student 2 or roll number 2, whatever. So I hope that this point is clear to you. Next, in this example, I will explain you new way to create array for data. Let's have a look on the example. Earlier you have created series and you have mentioned here directly the array for the data. But here you have specified your two lists. One is sales and one is month. And then sales was passed as data part and month is passed as index part. Just have a look on the output. As you can see that Jan, Feb, March is my index and 20, 45, 56 is my data. We can skip keyword data also, but keyword index is compulsory. What does it mean? In my previous examples to create a series, I have not written this data. मैंने ये data keyword नहीं लिखा. आप डायरेक्टली सेल्स भी लिख सकते हो, कोई एरर नहीं आएगी. बट आपके लिए इंडेक्स कीवर्ड लिखना कंपलसरी है. आप सीधे मंथ नहीं लिख सकते क्योंकि इंडेक्स को कैटेगराइज करने के लिए हमें इंडेक्स मेंशन करना पड़ता है. सो दिस पॉइंट यू विल कीप इट इन योर माइंड. The data keyword is optional but index keyword is compulsory. So you can make these two sequence. These sequence can be list, can be tuples, can be dictionaries, and you can pass these sequence as data and you can pass as index. So there are the variety of ways to create a data series. One of ways that I have explained here. Next topic, specifying data type in series. If you are not specifying data type, that means it takes the nearest data type to store the given values for series. What does it mean? सीरीज में जब भी आप कोई वैल्यूज लेते हैं तो वो डेटा टाइप ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेता है. सपोज आप इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहे हो तो नियरेस्ट इंटीजर अकॉर्डिंग आपका टाइप इंटीजर हो जाएगा. अगर आप डेसिमल टाइप की वैल्यू ले रहे हो तो आपका डेटा टाइप प्लॉट हो जाएगा. प्लॉट में भी अलग अलग वेरिएशंस हैं, तो डिपेंड्स ऑन योर डेटा कि आपका डेटा किस रेंज तक वेरी करता है. बट इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई योर ओन डेटा टाइप, अगर आप अपना खुद का डेटा टाइप सीरीज में ऑलरेडी डिक्लेयर करना चाहते हैं तो भी आप ये इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं. हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल. See here data cells is the same thing. Here I had mentioned D type. D type attribute will be used to create your own data type. Here I want any kind of value I will take. Have a look on the output. As you can see that यहाँ पे मैंने कोई डेसिमल वैल्यू नहीं ली है.
तब भी, पर मैंने यहाँ पे फ्लोट डिक्लेयर किया है, इसलिए यहाँ पे 20.0, 45.0, 56.0। अगर मैं यहाँ पे ये डिक्लेयर नहीं करती तो इसका आंसर आता 20, 45, 56। ये डेसिमल पार्ट को एक्सक्लूड कर देता। बट इट्स योर चॉइस, अगर आप डेटा टाइप इंक्लूड करना चाहते हैं देन यू विल यूज द डी टाइप एट्रीब्यूट। Using a mathematical function expression to create data array in series. What does it mean? कि आप डेटा पार्ट, सीरीज का जो डेटा पार्ट होता है उसको क्रिएट करने के लिए आप मैथमेटिकल फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस एग्जांपल। सी, इंपोर्ट numpy as numpy, pandas ऑलरेडी एक बार आप इंपोर्ट कर चुके हैं तो बार बार इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पहले आपने एक एरे बनाया np.arrange, दैट मैंने ये अरेंज फंक्शन के थ्रू अरे बनाना आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ व्हाट आर यू डूइंग, pd.series। अब आप सीरीज क्रिएट करने के लिए इंडेक्स में आप a को असाइन कर रहे हैं। दैट मीन्स आपने जो यहाँ से एरे बनाया, अरेंज क्या करेगा, 2 से लेके <5 मतलब 2, 3, 4, वो तो क्या हो जाएंगी आपकी इंडेक्स। और डेटा में क्या कर रहे हो आप, एक जो एरे है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो। हैव अ लुक ऑन द आउटपुट। सी, दिस इज माय इंडेक्स, दैट इज ए में क्या है आपका एरे 2, 3, 4, 2, 3, 4। एंड डेटा पार्ट में क्या है आपका a मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। Have a look on this note. If we are changing the position of data attribute and index attribute, then it is compulsory to write data keyword in series. In previous example मैंने आपको बोला था कि डेटा कीवर्ड लिखना आपके लिए ऑप्शनल है, बट अगर आप इंडेक्स को फर्स्ट पोजीशन दे रहे हो और फिर डेटा लिख रहे हो तो आप इस डेटा पार्ट को, इस डेटा कीवर्ड को स्किप नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में आपको इंडेक्स कीवर्ड भी लिखना पड़ेगा और डेटा कीवर्ड भी लिखना पड़ेगा। दैट्स वाई आई हैव गिवन दिस नोट स्पेशली। कहीं आप ये ना सोचो कि मैम ने तो कहा था कि डेटा पार्ट लिखना ऑप्शनल है, बट उसको तब ऑप्शनल है अगर आप डेटा को फर्स्ट पे लिखो और फिर इंडेक्स को लिखो। अगर इंडेक्स आप पहले लिख रहे हो बाद में डेटा को स्पेसिफाई कर रहे हो तो डेटा कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। अब इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। In this example, vectorize operation a multiply by 2 is performed on every element of numpy array. Vectorize operation का मतलब क्या होता है, जो हर एलिमेंट, अरे के हर एलिमेंट पे अप्लाई होता है वो होता है वेक्टराइज ऑपरेशन। जैसे अरे का हर एलिमेंट मतलब 2, 3, 4, तो मल्टीप्लाई जब किया गया तो उसके हर एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई किया हमने डेटा में। ओके, सो दिस इज वेक्टराइज ऑपरेशन दैट इज परफॉर्म्ड ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ numpy array एंड स्टोर्ड एज अ डेटा पार्ट ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। और उसको हमने किस फॉर्म में स्टोर किया, डेटा के फॉर्म में। इज इट क्लियर? नाउ हैव अ लुक ऑन अनदर एग्जांपल। नाउ इन दिस केस आई टुक अ लिस्ट एंड I had multiplied by list by 2. Now see the output. Here you can see that 1, 45, 67, 1, 45, 67. Why so? As we know that when a list object is multiplied, यहाँ पे मैंने list को 2 से multiply किया है, it replicate the list item. ये vectorize operation perform नहीं करेगा जैसे array में हुआ था, ये पूरी की पूरी list को replicate करेगा। जैसे मैंने multiply by 2 किया है तो ये 2 टाइम्स आपके सामने इसको रेप्लिकेट करेगा। 1, 45, 67, 1, 45, 67। सो एरे के केस में और लिस्ट के केस में मल्टीप्लिकेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन अलग तरीके से परफॉर्म होते हैं। दैट्स वाई आई टुक 2 डिफरेंट काइंड ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन टू मेक अ डेटा अरे फॉर अ सीरीज।